मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि वस्सव्वरकुम फ़अहसना सुवरकुम व इलैहिल मसीर व यअलमु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ि व यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातिमिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीबि क़ुलूबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية وعلى أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات دعا ہے پروردگار عالم سادات اعظام کی یہ سفیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جناب سید غلام بادشاہ صاحب، سید علی اصغر اور ان کے علاوہ جتنے مرحومین بانیان کے ہیں، آپ سامعین کے ہیں، اللہ سب کے درجات بلند فرمائے. 15 رجب ہے، آپ جانتے ہیں کہ آج انتہائی اہمیت والا دن ہے. ہاتھ اٹھائیے اور یہاں آنے کا اپنا مقصد پورا کیجئے. میرے اللہ امام حسین کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما. میرے اللہ بادشاہ حسن کے صدقے میں ہماری خطائیں معاف فرما. میرے اللہ دو جہاں میں سب سے افضل بی بی کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما. میرے اللہ مولا امیر المومنین کی ولایت مطلقہ کے صدقے میں ہماری توبہ قبول فرما. میرے اللہ دو جہاں میں سب سے افضل سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت و عصمت و طہارت کے صدقے میں ہم سب کی اجتماعی معافی اور توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار پورے پاکستان میں امن و امان کی فضا قائم فرما. ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے پاک ابو طالب کے پاک خاندان پہ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ حلالی زیادہ ہیں، آواز تھوڑا آ رہا ہے. نعرہ رسالت، مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات. اجازت ہے جناب، بات شروع ہو جائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے جناب، مہربانی جناب. کافی بہترین اور مفصل خطاب فرمایا قبلہ صاحب نے. اس کے باوجود بھی اتنے سارے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں جناب. 1.25 گھنٹہ تقریباً قبلہ نے کمال کا خطاب فرمایا، اور آخری ان کی جو بات تھی وہ مولا امیر المومنین کے فضائل تک آئی تھی کہ علی کل ایمان ہے، علی تدبیر خدا ہے. تو اگر آپ چاہیں تو اجازت دیں تو میں وہیں سے شروع کروں جہاں قبلہ چھوڑ کے گیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. محترم سامعین، ہم جب آپس میں بات کرتے ہیں، سب سے پہلے تو مجلس شروع کرنے سے پہلے میں پیغام آپ تک پہنچا لوں کہ آپ جانتے ہیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور لائیو جا رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ شیعہ ذاکر کیا پڑھ رہا ہے اور حلالی کیا سن رہے ہیں. اس لیے کیمرے کی وجہ سے ہماری ڈبل ذمہ داری ہے کہ خیال سے پڑھیں، اور آپ کی ڈبل ذمہ داری ہے کہ صرف عبادت نہیں بلکہ مذہب کی غیرت بن کے بیٹھیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو جب مالک آپ کو سلامت رکھے، جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں، جناب ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. بڑی جلدی نہیں آ گئی. اچھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کافی ابھی میرے خیال ہے لفظ شروع بھی نہیں کیا. خیر ہے، چلو اجازت ہے جناب. ذرا آپ کے لائق ماحول ہو جائے گا، میں چھوڑ دوں گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ملک صاحب، ہم جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ہمارے پاس سمارٹ فون ہے، نیٹ ہے، سم ہے، کبھی جیز ٹو جیز ہے، کبھی جیز ٹو ٹیلنر ہے، کبھی یو فون ہے. پروردگار یہ بتا کہ جب تو اپنے نبیوں سے بات کرتا ہے، تیرے نیٹ اور سم کا نام کیا ہے؟ مالک آپ کو اللہ آپ کو سلامت رکھے. جب تو اپنی حجت سے بولتا ہے
परवरदिगार हम तो आपस में बात करते हैं, हमारे तीन तरीके हैं, या हम कॉल करते हैं, या हम वॉइस छोड़ते हैं, या हम रिटर्न मैसेज करते हैं। कि और भी कोई तरीका है? नहीं। मालिक तू बता, तू कैसे बात करता है? अल्लाह फरमाया इत्तेफाक ये है डॉक्टर साहब, इत्तेफाक ये है कि मेरे भी तीन ही तरीके हैं। मालिक कहाँ फरमाया? सूरह शूरा, सूरह नंबर 42, 114 में से इसका नंबर है 42। अल्लाह तू कैसे बोलता है? फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसल रसूला। फरमाया मैं तीन तरीकों से अपने नबियों से कम्युनिकेशन, अपने नबियों से बात करता हूँ। पहली बात यह है कि मैं डायरेक्ट उनके कल्ब पे मैसेज छोड़ता हूँ। दूसरे तरीके पे शिया बोल पड़ेंगे। दूसरा तरीका यह है, या फिर मैं पर्दा लगा के बात करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। भाईजान बोलिए ज़रा मेरे साथ, जवान भाई, खुदा आपको सलामत रखे। या मैं डायरेक्ट इल्का करता हूँ, या मैं पर्दा लगा के बात करता हूँ, और युरसल रसूला, या मैं फरिश्ता भेज के बात करता हूँ। इसका मतलब है कुरान की रूह से माइक पे मुंह है, कैमरा लगा हुआ है, मलक साहब तशरीफ फरमा है। कुरान की रूह से तीन तरीके हैं अल्लाह के अपनी हुज्जतों से, अपनी हुज्जत से बातचीत करने के। या डायरेक्ट वही होती है, या पर्दा लगा के बात होती है, या फरिश्ता भेज के बात होती है। इसका मतलब है सीने पे हाथ मार के हज़रत आदम ये कह सकते हैं हम वो हैं जिनसे अल्लाह बोलता है। नूह ये कह सकते हैं हम वो हैं जिनसे अल्लाह बोलता है। इब्राहिम ये कह सकते हैं हम वो हैं जिनसे अल्लाह बोलता है। मूसा ये कह सकते हैं हम वो हैं जिनसे अल्लाह बोलता है। ईसा ये कह सकते हैं हम वो हैं जिनसे अल्लाह बोलता है। मलक साहब से लेकर आखिरी बुजुर्गों तक अल्लाह की कसम 1.25 लाख नबी सीने पे हाथ मार के कह सकते हैं हम वो हैं जिनसे अल्लाह बोलता है। पूरी कायनात में एक तेरा मुर्शद अली है जो सीने पे हाथ मार के कह सकता है हम वो हैं जिसके लहजे में बोलता है। बादशाह आपको सलामत रखे भाई, बड़ी मेहरबानी। हैदरी, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी आते ही उन्होंने नारा लगा दिया, मेहरबानी जनाब, अल्लाह आपको सलामत रखे। सारे अंबिया कह सकते हैं कि हम वो हैं जिनसे अल्लाह बोला है, और मेरे मौला अली ये कह सकते हैं हम वो हैं जिनके लहजे में। और ये ना समझिएगा कि शियों का सबसे छोटा जाकिर है और वो माइक पे मुंह रख के कह रहा है कि ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है। 150 से ज़्यादा किताबें हैं हमारे अहले सुन्नत और अहले हदीस उलमा की, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, 150 से ज़्यादा किताबें कि जब पैगम्बर आज़म मेराज से वापस आए थे तो एक सहाबी ने पूछा था मजमे में खड़े होके, या रसूलल्लाह आप जो वहाँ गए हैं तो क्या अल्लाह आपसे बोला है? फरमाया और अल्लाह ने मुझे बुलाया किस लिए था? बोला है। या रसूलल्लाह ये बताएंगे कि वो कैसे बोलता है? फरमाया उस अल्लाह की कसम जिसने ताज नबूवत को मेरे सर पे रखा वो बिल्कुल ऐसे बोलता है जैसे घर में मेरे साथ अली बोलता है। कल्लमनी बिलहजत अली इब्न अबी तालिब। मालिक आपको समझ कि अल्लाह मेरे साथ ऐसे बोलता है जैसे घर में मेरा भाई अली मेरे साथ बोलता है। मालिक आपको समझ कि मैंने 3 से 4 कुरान की आयतें पढ़ के एक कसीदा पढ़ना है जी। फिर मेरे पास सुरीले बंदे मौजूद ना जी, मैं ज़रा बेसुरा बंदा हूँ, तो एक कसीदा पढ़ के तो मैं सलाम करके आप जाना चाहूँगा। आप ये पूछ सकते हैं मलिक साहब, शहनशाह के सायद हैं आप, एक अलग से आपका अंदाज है बेमिसाल सा, अल्लाह इज़्ज़त और रिज़्क़ में मज़ीद इजाफा फरमाए। डॉक्टर साहब जब कोई जाकिर खड़े होते हैं ना, जैसे मेरे बाद मलिक साहब पढ़ेंगे, तो पहले वो आपसे बातचीत करेंगे, फिर 2-4 रुबाइयाँ पढ़ेंगे अपने मौजू के मुताबिक, फिर वो कसीदा शुरू करेंगे अपने सौदियों को खड़ा करके या अकेले, ये जो इनका अपना एक स्टाइल है। तो आप इनसे पूछिए कि ये जो आप पहले कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? तो ये कहेंगे मैं तमहीद कर रहा हूँ, तमहीद बांध रहा हूँ। तो मैं भी 3 से 4 कुरान की आयतें कसीदे की तमहीद के लिए पढ़ रहा हूँ। एक मरतबा जरा मिल के बोलिए क्यों? नहीं थोड़ा वादा है, बाजमात बोलिए जी। क्योंकि जिसके कसीदे की तमहीद में कुरान पढ़ना पड़े उसे अली कहते हैं। मालिक आपको सलामत रखे। बेटा आपको समझ आ रही मेरी बात की? जिस बादशाह का कसीदा शुरू करने से पहले तमहीदन कुरान पढ़ना पड़े, ऐसे इज्जतदार जात को मौला मालिक आपको सलामत रखे। एक आयत होगी, दूसरी सुनिए, वो थी सूरह शूरा। अब पढ़ने लगा हूं सूरह काफ। ये 114 सूरतों में से सूरह नंबर 50 है। ए यूं काफ लिखा जाता है, ए यूं काफ, ऊपर 2 नुक्ते, जिसे आप काफ कैंची वाली कहते हैं, काफ। जरा माहौल आपका लायक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप समझ रहे हैं मैं मुश्किल वक्त में पढ़ रहा हूँ। मालिक आपको सलामत रखे। सूरह काफ में इरशाद फरमाया, ये था मालिक तू अपने 1.25 लाख नबियों से कैसे बोलता है। एक मतलब मेरे साथ बोलिए, मालिक तू अपने 1.25 लाख नबियों से।
कैसे बोलता है। अब दूसरी बात, मालिक ये तेरे 1.25 नबी जब पलट के अपनी उम्मतों को साथ लेकर, आप हमें समझाने वाले बंदे बैठे हैं इंशाल्लाह, हमें भी आप बताते रहते हैं हवाला जात किताबों के, खुदा आपके मुताले में और आपके ज़र्फ़ में मज़ीद वुसअत अता फरमाए। मैं आपकी खुसूसी दुआ चाहता हूँ, परवरदिगार जब तेरे नबी सारी उम्मतों को लेकर तेरी बारगाह में वापस पलटेंगे, जैसे हमारे पास ये कैमरा लगा हुआ है, ज़रा कुरान में कैमरा लगा के दिखाना वो कैसी फिल्म होगी, वो कैसा सीन होगा, वो कैसा मंजर होगा। परवरदिगार मैं सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज्जाअत कुल्लु नफ्सिन माहा साइकुन व शहीद। और मैं सुनो, क़यामत वाले दिन, क़यामत वाले दिन, क़यामत वाले दिन हर नबी अपनी उम्मत को लेके मेरी बारगाह में इस शान से पेश होगा, मेरी तरफ देखेगा, इस रंग से पेश होगा कि उम्मत उसके आगे आगे होगी, नबी पीछे होगा। मलक साहब बिल्कुल ऐसे जैसे एक चौधरी साहब अपनी हवेली से अपना माल डंगर लेके निकलते हैं, गायें भैंस बकरियां गावां मज्जां जैसे लेके निकलते हैं ना चरागाह की तरफ, उनके हाथ में एक बड़ा सा डंडा होता है और माल मवेशी आगे आगे। अल्लाह कुरान में कहता है वज्जाअत कुल्लु नफ्सिन माहा साइकुन व शहीद। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक माल वाला बंदा अपना माल लेके हवेली से चरागाह की तरफ निकलता है, इसी तरह कयामत वाले दिन हर नबी के हाथ में डंडा होगा और उसकी उम्मत उसके आगे आगे होगी। यानी कुरान कह रहा है, कुरान कहता है, शिया जाकिर को कुरान नहीं आता, ना इनके मजमे को सुनना आता है, नौजुबिल्लाह। मैं कुरान आपके सामने पढ़ रहा हूँ और कैमरा लगा हुआ है। हर नबी डंडा पकड़े हुए पीछे होगा, उसकी उम्मत आगे होगी। 1.25 लाख नबी 1.25 लाख डंडे हाथ में लिए 1.25 लाख उम्मतों को हाँकते हुए अरसा माशर में ले जाएंगे। अल्लाह की कसम कुरान कहता है नबी पीछे उसकी उम्मत आगे। मुंदर भाई सिर्फ हुसैन का नाना कहते हैं या अली अंता कायदुल गुर्रल मुहज्जलीन, या अली फकत तू ऐसा है कि तू आगे होगा, तेरे शिया पीछे होंगे। भाई खुदा आपको सलामत रखे बेटा, आप बोल रहे हैं मेरे साथ में हैदरी, अल्लाह आपको सलामत रखे। या अली, मेरे माने जनाब, या अली शाह जी, या अली हर नबी पीछे है, उसकी उम्मत नहीं, आवाज थोड़ा आया, उसकी उम्मत या अली एक तू है कि तू आगे है, तेरे शिया पीछे हैं। आपको पता है जब जाकिर के पास बड़ा फिक्रा होता है तो फिर वो जरा दाएं बाएं हो के कहता है कि ध्यान रखो, मैं नहीं कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो मेरा भी ओ ही है वड्डा फिक्र है, क्या मेरी आंखों में आंखें रख के मेरा साथ देंगे आप? पता नहीं। इसके बाद शाह जी ने फरमाया कि हुक्म मलिक साहब हुआ है 40 मिनट का, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 मिनट मजीद छोड़ दूं, ताकि आप चूंकि पहले तशरीफ ले आए भी आप इसीलिए हैं कि जरा मौलवी जल्दी करेगा, वरना इन्हें पढ़ी होना, ठीक है। अच्छा, अल्लाह आपको सलामत रखे। वजात कुल्लु नफ्सिन मा साइकुन व शहीद। पर सुनिएगा, फरमाया हर नबी पीछे है, उसकी उम्मत आगे है। कायनात में एक मौला अली है कि वो आगे है, शिया पीछे हैं। मैंने आलम ज़रा मैं जुमला कहूँगा, आप अपनी आवाज़ को भी देखिएगा और जाकिर साहब की ज़ियारत भी कीजिएगा कि मुंतर महदी जैसे जाकिर जिनके सामने हज़ारों लोग वाह वाह करते हैं, अगर उनका भी हाथ ना उठे तो मैं आपका खादिम ही नहीं हूँ, क्योंकि कुरान है और जिक्र अली है। मेरा क्या कमाल है, अली आगे शिया पीछे, नबी पीछे उम्मत आगे। या अली ये उलट क्यों है? फरमाया नबियों को डर है कि कहीं उनकी उम्मत उन्हें छोड़ के भाग ना जाए। अली मुतमिन है, अली को पता है मेरे शिया जन्नत तो छोड़ सकते हैं, अली नहीं छोड़ सकते। हाय हाय भाई, बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, मालिक आपको सलामत रखे। सलामत रखे, बच्चों के साथ साथ अल्लाह आपको सलामत रखे। 2 आयतें होंगी जनाब, 2 3 4 मैंने कहा था ना, 3 4 के बाद एक सीधा पढ़ेंगे और सलाम कर जाएंगे। 2 हो गई तो 2 तकरीबन और पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। मालिक तू अंबिया के साथ कैसे बोलता है? फरमाया हम 3 तरीकों से बोलते हैं। मालिक तेरे नबी क़यामत वाले दिन तेरे सामने कैसे पेश होंगे? फरमाया यूँ पेश होंगे कि नबी पीछे होंगे, उम्मत आगे। मेरा मौजूद समझ आ रहा है जनाब? नंबर 3, परवरदिगार ये बता कुरान कि जब तूने 1.25 लाख नबी खल्क किए थे, भाई तवज्जो सामने मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ कि कैमरा लगा हुआ है और जाकिर की जिम्मेदारी डबल हो गई, अब आपको पता है सोशल मीडिया वैसे। तो जब तूने, पता नहीं कब, ये नहीं पता कब, लेकिन जब तूने 1.25 लाख नबी कौन कह के खल्क किए होंगे, कोई तो टाइम होगा ना, तो सबसे पहले जो तूने उनसे बात की थी वो क्या थी? मैं अपना सवाल फिर दोहराता हूं। मकसद ये है मेरे मोहतरम सामीन कि जब आप मजलिस में आते हैं ना,
ذہن تو پہلی نیت ہوتی ہے عبادت کی، ایسا ہے یا نہیں؟ دوسری اس کے ساتھ ساتھ جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لے کے آنا ہے، چونکہ یہ لکڑی کا پھٹا نہیں، سید سجاد کی یونیورسٹی ہے۔ یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ صرف لکڑی کا پھٹا نہیں ہے، یہ میرے مولا سجاد کی یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے نا۔ جو میری ہم عمر ہیں یا مجھ سے چھوٹے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں۔ بزرگ تو اپنی بات کے لیے آتے ہیں نا، نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ میں پھر آپ کی وجہ سے سوال دہرا رہا ہوں، اللہ جب تو نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بنا لیا تو کوئی تو انکل جی ایسا لمحہ تھا نا کہ جب تو پہلی مرتبہ اپنی حجتوں سے بول رہا تھا، او کیڑی گل سی؟ فرمایا سنو سورہ آل عمران۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا کلینک بھی ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب وہ جو نیند والی گولی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ 81 کہتے ہیں؟ ہاں 81۔ تو 81 نیند والی گولی ہے، تو اس لیے میں دہرا رہا ہوں کیونکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے گی، اور آیت کا نمبر بھی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 81، ٹھیک ہے جی؟ 81 ہی آتا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا سنو، ہم نے 1.25 لاکھ نبیوں کو چوتھے آسمان پہ اکٹھا کر کے پہلی مرتبہ جو فکرہ کیا وہ یہ کہا تھا، اے 1.25 لاکھ نبیوں تم سب پہ واجب ہے اپنے منہ سے اقرار کرو کہ ہم 1.25 لاکھ نوکر ہیں، زہرا کا بابا سردار ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ میرے بھائی جو چاہتے بھائی میرے ساتھ بول رہے ہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ چونکہ مجھے آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ زیادہ مجمع سریلے لوگوں پر مشتمل ہے، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان بسورا بندہ فٹافٹ جائے، تو پھر تو سریلا بندہ ہے تو تھوڑا سا تو مجھے پڑھنے دینا آپ جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑا اچھا آپ خط سن رہے ہیں، مالک آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے۔ یہ پھر ایک مجلس کا رنگ ہوتا ہے نا، کبھی بسورا آ گیا بندہ، کبھی سریلا آ گیا، تو ایک رنگ ہوتا ہے نا مجلس کا، تو ہر بندے کی اپنی اپنی ہے۔ تو جی تواڈی مہربانی جناب، اللہ آپ کو سلامت۔ یہ آپ کی سمجھداری ہے جناب، آپ کا ظرف ہے، ورنہ سریلے بندے سے بھی پوچھ لیجئے کہ سر لگانے سے زیادہ مشکل ہے سر میں بات کرنا، یہ زیادہ مشکل ہے، یہ زیادہ مشکل۔ اور سریلا ذاکر بھی وہی کامیاب ہے جو اپنی سر سے پہلے سر میں بات کرتا ہے۔ مندے ہی نہیں، صحیح بات کرنا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ فرمایا کہ ہم نے 1.25 لاکھ نبیوں سے کہا کیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اے تم پہ واجب ہے اقرار کرو، مصطفیٰ پر ایمان لاؤ، اور وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور مصطفیٰ کی مدد کرو، نوکری کرو، چاکری کرو، یعنی 1.25 لاکھ نبیوں تم پر واجب ہے تم محمد کے خادم بن جاؤ، مصطفیٰ کی امتی ہو جاؤ، مصطفیٰ پر ایمان لانے والے ہو جاؤ۔ کیا تم یہ اقرار کرتے ہو؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا مالکہ بالکل اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا پھر گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ اب میں سوال کرنے لگا ہوں، ملک منظر صاحب اگر یہ سوال قرآن میں نہ ہو تو خالی سوال کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک باری میری گال پھر سن لو، میں پیانا یہ جو میں سوال کرنے لگا ہوں نا، اگر یہ قرآن میں نہ ہوتا تو صرف سوال ہی سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کروں سوال؟ ابھی آپ دیکھیں، اللہ اگر تیرے 1.25 لاکھ نبی یا ان میں سے کوئی ایک اس کیے ہوئے وعدے کو توڑ دے، مکر جائے، نبی پھر جائے، پھر کیا ہوگا؟ اگر قرآن میں نہ ہوتا تو میں کہتے ہی کافر ہو جاتا۔ فرمایا یہ 81 تھی، اب 82 پڑھ، فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو نبی میرے محمد سے مکر جائے گا میں اس کی نبوت کو بیکار نہ کر دوں، مجھے اللہ نہ کہنا۔ وہی آج کے بعد نہ پوچھنا کہ علی ولی اللہ کی اہمیت کیا ہے، وہ یہ تھوڑی اہمیت ہے 1.25 لاکھ نبی محمد سے پھر جائیں تو ان کی نبوتیں بیکار، اور اللہ غدیر میں کہتا ہے میرے حبیب اگر تو نے یہ نہ کیا تو تیری نبوت بھی بیکار ہے۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی سرکار۔ بھائی جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے، دیر ہو گئے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ پاجی کتنی آیات ہو گئیں؟ 3 ہو گئی، سورہ شورا، سورہ قاف، سورہ آل عمران۔ ملک صاحب پھر کوئی بندہ بکواس کر کے کہے کہ ذاکر قرآن نہیں پڑھتے، پھر زیادتی ہے نا، زیادتی ہے، اللہ کی قسم زیادتی ہے، جھوٹ ہے، فساد ہے، حسد ہے، اور حسد ہم سے شروع نہیں ہوا، مولا علی سے شروع ہوا۔
آپ کو پتا ہے میں بھی جب میں پڑھ کے جاؤں گا تو ملک صاحب بھی جتنے بھی قصیدے پڑھیں مین وہ یہی پڑھیں گے رجب کی. آپ کو پتا ہے 13 کال پرسوں گزری ہے تو ان کا بھی موضوع محور یہی ہوگا کیونکہ وقت ایسا ہے نا. تو آئیے پھر میں 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. اب میں چوتھے نمبر پہ گھما کے آپ کو کعبے کی طرف لا رہا ہوں. یہ حسد ہے میرے مولا علی کا, اللہ کی قسم حسد ہے, خدا کی قسم حسد ہے. جو کہا گیا کہ مولا کا معنی وہ نہیں جو شیعہ کہتے ہیں مولا کا معنی یار ہے, حسد ہے. ملک صاحب دیکھیے میں کیسے گھما کے لا رہا ہوں. ملک صاحب اسی طرح اللہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ بابا جی, بابا جی جاستے اسی طرح میرے توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا. ایک باری ویکھ لو سجدہ نو ویکھنا ثواب ہے, ایک باری ویکھ لو پھر ذکر سننا بھی ثواب ہے. ٹھیک ہے, مولا آپ کو سلامت شاہ جی, خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے. پھر سنیے, حسد ہے یہ جو کہا گیا نا مولا کا معنی وہ نہیں ہے جو شیعہ کہتے ہیں مولا کا معنی یار ہے. میں جناب کے سامنے ایک ایسی آیت پڑھتا ہوں جو آپ کے بچوں کو حفظ ہے, بلکہ اس بندے کو بھی حفظ ہے جو مجھ سے زیادہ ان پڑھ ہے. حالانکہ میں تقریباً سب سے زیادہ ان پڑھ میں ہوں, لیکن اگر کوئی فرض کرے مجھ سے بھی بڑا ہے نا جاہل پٹھے وٹ بندہ, اسے بھی یہ آیت آتی ہے. پڑھوں آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہی ہے, یہی آیت ہے. یہ بھی قرآن کی آیت ہے نا کہ بسم اللہ الرحمن. اچھا اب ترجمہ اس کا دیکھیے, شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. ایم آئی رائٹ ملک صاحب؟ کیا اس کا ترجمہ ایسے ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمان اور رحیم جو اللہ ہے اس کے نام سے شروع؟ کیوں کیوں کیوں؟ آپ کہیں گے جہاں سے عبارت شروع ہے اتھوں مارو. بھائی توجہ سامنے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کیمرہ لگا ہوا ہے, ایک ایک حرف ہمارا نوٹ ہوتا ہے. پھر سنیے, آپ نے کہا کہ جہاں سے عبارت شروع ہے نا بسم اللہ, ایتھوں ترجمہ شروع کر. مولوی صاحب تو کہتا ہے علی کا معنی من کنت مولا فاضا علی مولا, علی مولا کا معنی علی یار ہے, علی یار ہے. حدیث یہاں سے شروع نہیں ہو رہی, حدیث شروع ہے من کنتوں سے. پہلے یہ بتا محمد مولا کا معنی کیا ہے. ہائے ہائے, بادشاہ آپ کو سلامت رکھے ملک صاحب, مہربانی. پہلے یہ دیکھ محمد مولا کا معنی کیا ہے. اللہ کی قسم اگر مصطفیٰ تیرا یار ہے تو تو کہہ سکتا ہے کہ علی میرا یار ہے, اور اگر تو مانتا ہے کہ محمد سردار ہے تو پھر ماننا پڑے گا نا علی بھی سردار ہے. اسی لیے حضرت عمر نے ان الفاظ میں مبارکبادی تھی, بخن بخن لک یا ابن ابی طالب انت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ. اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو, آج کے بعد تو میرا بھی سردار ہے, ہر مرد کا بھی سردار ہے, ہر عورت کا بھی سردار ہے. ملک صاحب اگر مانا یار ہوگا تو کیا ترجمہ بنے گا؟ حضرت عمر یہ کہنا چاہ رہے تھے یا علی تو میرا بھی یار ہے, ہر مرد کا بھی یار ہے, ہر مرد کا بھی یار ہے. اگلا فکر میں نہیں کہہ سکتا ہر مرد کا بھی, ایسا نہیں تھا. اللہ کی قسم حضرت عمر کا مطلب تھا تو سردار ہے. آپ کا حق بنتا ہے کھڑے ہو کے میرا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے پوچھے بھائی تجھے کیسے سمجھ آئی کہ حضرت عمر کا اندر سے مانا سردار تھا؟ منظر بھائی سردار ہی تھا, اسی لیے تو اپنے بڑے بیٹے سے کہا تھا جا جلدی جا اور حسن سے لکھوا کے لے آ. سردار تھا, اللہ کی قسم, خدا کی قسم سردار تھا. بھائی ڈنگے والوں, منڈی والوں, گجرات والوں, لالے موسے والوں, بھائی جان مہربانی. بھائی جان مالک آپ کو سامنے کہ پونا مجمع ہو گیا, چوانی رہ گا, جیسے چوانی پوری ہوگی میں ممبر چھوڑ کر چلے جاؤں گا. اپنے بھائی کے جیسا ان کا بڑا نام ہے اتنا بڑا مجمع ان کو ہونا چاہیے. بس تھوڑا سا رہ گیا, بس تھوڑی سی گنجائش رہ گئی ہے. جیسے وہ اور بندے آئیں گے پھر میں انشاءاللہ آپ کو سلام کر کے چلا جاؤں گا. یہ جو بندے آ رہے ہیں میں نہیں سمجھتا یہ میرے لیے آ رہے ہیں, یہ بھائی منظر کے سارے فین ہیں جی, ان کو سننے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, مولا پائنتر پاک آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی عزت رزق میں اضافہ فرمائے. ذرا ملک صاحب خصوصی دعا میں چاہوں گا. ملک صاحب میں نے کہا تھا 4 آیتیں پڑھ کے میں آپ کو دیکھی کعبے میں کیسے لا رہا ہوں, اور جہاں میں پھر کعبے میں چھوڑ کے جاؤں گا آپ کو وہیں سے ملک صاحب شروع کریں گے قصیدہ انشاءاللہ, وہیں سے رباعیوں کا آغاز ہوگا. آپ ذرا سر اٹھائیے آنکھوں میں آ کر کے. حسد میں کہا گیا ہے کہ مولا کا معنی یار ہے, اسی حسد میں تیرے چھٹے مولا کے سامنے کسی نے پوچھا مولا متا آمن علی جن, علی ایمان کب لائے؟ میں شٹ اپ, متا کافارا, وہ کافر کب تھے جو آئے کعبہ میں, جائے مسجد سے, وہ کافر کب رہا ہوگا؟ بابا جی یہ حسد ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے, میرے پاس آ جائیے. بابا جی بسم اللہ آ جائیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے محمد والا. تھوڑی سی نوکری کھڑے ہو کے کر رہے ہیں, ایک اور صلوات پڑھ دیجیے.
बाबा जी कह रहे हैं मैंने वहाँ बैठना है। देखिए जहाँ शाह जी बैठे हुए हैं, एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, साथ में 3 कुर्सियाँ और भी हैं। ये भी आपको नजर आ रहा है? नहीं ठहर जाए, नहीं आ रहा शायद। अब ठीक है, गुजरा वाला बंदा चुक लेंगे। अब ठीक है जी, शास्ता जी पूरी नजर आई है। अब आपने मुझे बताना है क्यों हम कहते हैं कि मोहम्मद के बाद कुर्सी पे जचता ही अली है। हम क्यों कहते हैं? और मैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं अक्सर नाम लेके पढ़ता हूं। मैंने कभी नाम लेना ना तो मैं सहाबा का नाम लेके पढ़ता हूं, फिर बाद कुछ बेचारे हमारे जो दोस्त सब आप में डर जाते हैं, पता नहीं क्यों लगा है। हालांकि मुझे बड़ा पता है कि मैंने क्या पढ़ना है। मलिक साहब 15 साल हो गए आपके सामने, आपकी दुआ से मैं जाकर कह रहा हूँ, 15 साल से वहदा शरीक की कसम, सदात की कसम, आज तक मुझ पे छोटी सी दरखास्त भी नहीं है। ये तरस है मलिक साहब। मैंने किला दारसिंह जैसी हस्ती पे भी जरीब तरतीब पढ़ा है, हाफसाबाद फुहारा चौक जो पढ़े पर्चा है, राजा चौक जो पढ़े पर्चा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। फिर भी कुछ दोस्त अब महफिलों में बैठ के कहते हैं उन ना पढ़ाया जाए पर्चा हो जाएगा। हसद के जावा, हसद है ਇਹਦਾ मतलब है गल विच कुछ होर ना पता, उन्होंने पढ़ाओगे तो न्याय देनी पेगी ना, उन्होंने गरीब ही रहने दो। ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे, ऐसी बात नहीं। मैं देखे नाम लेके पढ़, मैं कह रहा हूँ, कुर्सी मैंने आपको दिखाई और मैं अर्ज कर रहा हूँ सामीन मोहतरम कि मुस्तफ़ा के बाद पाक मुस्तफ़ा की कुर्सी पे जचता ही अली है। अच्छा अब मैंने पर्चे की बात क्यों की, वो इसलिए हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए। हम हजरत अबू बकर की जिद में नहीं कहते कि अली जचता है, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम हजरत अबू बकर की जिद में नहीं कहते, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम हम हजरत उमर की जिद में नहीं कहते, अलीयुन वलीउल्लाह की कसम हम हजरत उस्मान की जिद में नहीं कहते कि मिंबर पे जचता ही अली है। हम मजबूर हैं कुरान से। एक मर्तबा पूछें कहां, नहीं कहां पूछे, कहां? सूरह काफिरून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मोटा तर्जुमा करूंगा, बच्चों को भी समझ आएगी। मलिक साहब अल्लाह कुरान में कहता है हबीब तू कह दे ओ काफिरो, मैं मोहम्मद कह रहा हूं, ना मैं बुत परस्त था, ना बुत परस्त हूं, ना बुत परस्त बनूंगा। ओए हम किसी की जिद में नहीं कहते कि जचता ही अली है, हम अली छोड़ने को तैयार हैं। तू मोहम्मद की महफिल में अली के अलावा वो बंदा दिखा जो सीने पे हाथ मार के कहे कि मैं भी मोहम्मद की तरह ना बुत परस्त था। बाबा जी मर्जी है ना, बाबा जी फिक्र, मैंने पैगाम तो दे दिया, पैगाम तो हो गया। मौला पाइंदरबाग आपको सलामत के मैंने पैगाम जिस तक पहुंच गया। एक किताब का नाम आपने 1000 मरतबा सुना होगा, लो नाम, अस्सवाए के मोहर का। मलिक साहब इजाजत दे तो मैं इसका तर्जुमा बताऊं। मलिक साहब जैसे आपका लफ्ज है मुंतजिर, अगर इसे इंतज़रा यंतज़िरु इंतज़ारन फ़हुवा मुंतज़िरुन, अगर इसे इसमें फाइल पढ़ा जाए मुंतजिर तो इसका तर्जुमा बनता है इंतजार करने वाला। और अगर यूं पढ़ा जाए इंतज़रा यंतज़िरु इंतज़ारन फ़हुवा मुंतज़िरुन, मुंतज़िर युंतज़िरु इंतज़ारन फ़ज़ाका मुंतज़रुन, अगर इसे मुंतज़र पढ़ा जाए इसका मतलब है जिसका इंतजार किया गया। इसी तरह एक लफ्ज आपके सामने है ज़ैगम। ज़ैगम का माना शेर है, बंदा में मस्कीन ही है, लेकिन माना इसका क्या है? इसका मतलब है कि हर लफ्ज का कोई ना कोई माना। जिस तरह आप 2-4 बंदे परेशान बैठे हैं, वो बंदे नूं आई गल भी भुल जाती है। डॉक्टर साहब शेर हर लफ्ज का कोई ना कोई, जब तक आप नहीं बोलेंगे मैं आगे बढ़ना ही नहीं, हर लफ्ज का कोई ना कोई। और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी नतीजा आ जाए तो फिर सर उठाइए, पैंतन पाक की कसम मैंने सुना है कि बड़ी मार्फत है गुजरात में, लाला मूसा में, डिंगा में, मंडी में 50-60 से ज़्यादा मजालस में मैंने यहाँ राउंड बोर्ड पढ़ी हैं, अशरे भी पढ़े हैं, सुना है। आज ज़रा चेक कर लें कि मार्फत का मयार क्या है। हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनिए, पूरी कायनात में एक मेरा मुर्शद अली वो वाहिद सैयद है जिसका घर भी कपड़े पहनता है।
मलक साहब ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। लाहौर के मुताबिक लफ्ज आया जी, खुदा आपको सलामत रखे। शाह जी मेहरबानी। बाबा जी मैं फिर कह रहा हूं, पूरी कायनात में मेरा मुर्शद अली वो वाहिद सैयद है जिसका घर भी कपड़े पहनता है और नीले पीले नहीं पहनता। पाजी आवाज थोड़ा आया, एक बार ऊंची आंखों, कौन से? काले पहनता है। तो क्या मेरे मोहतरम सामीन को पता है कि काबा कपड़े क्यों पहनता है? देखिए, अगर मैं ये पैगाम दे के चला जाऊं तो एक तालिब इल्म के आने का हक अदा हो गया। मैं रुका इसलिए जरा मैं सादात का इंतजार कर रहा हूँ। शाह जी तशरीफ लाए हैं, बाबा जी, बाबा मुश्तबा शाह जी, अलमरूफ पीर मुंदरी शाह जी, मालिक इनका साया सलामत रखे। बहुत बड़े लोग हैं और बहुत छोटे लोगों से प्यार करते हैं, इनकी मेहरबानी जनाब। शाह जी इजाज़त है बाबा जी। बाबा जी मैं अर्ज कर रहा था कि मौला अली वो वाहिद सैयद है जिसका घर भी कपड़े पहनता है, और बाबा जी नीले पीले नहीं, काले। शाह जी आपकी तशरीफ लाने से पहले मैं कह रहा था कि क्या जनाब को पता है कि काबा कपड़े क्यों पहनता है? तो वो सुन लीजिए। मोहतरम सामीन, इस तरह है कि मलिक साहब ये पैगाम है, मुमकिन है जहां तक हजरत इब्राहिम के पास इसकी चाबी थी काबे की। हजरत इब्राहिम कोई मामूली जात नहीं है, ये सादात की जद है। और मुझसे अक्सर बंदे पूछते हैं कि सैयद, बाबा जी पूछते हैं लोग, सैयद की अलामत क्या है? आपको पता है बाबा जी, कई ऐसे लोग हैं जो बने हुए हैं जिन्होंने काम खराब किया हुआ है, बेशुमार बेशुमार बेशुमार। बाबा जी जैसे मलिक साहब, जैसे ना बंदा सैयद हो और कहलवाए ना सैयद, उसे नहीं पता ये कितनी बड़ी गाली है, कितना ही बड़ी, यानी किस हद तक ये गाली है। जो बंदा शाह जी, मुश्तबा शाह जी, जो बंदा सैयद नहीं है ना और कहे मैनू सैयद आख हो, तो ओदा मतलब है सारा पाकिस्तान रल के मेरी मां नू गालां कढे। ये मतलब है, ये मतलब है। यानी जो बंदा कहता है मुझे सैयद कहो और सैयद नहीं है, तो वो अपनी वालदा मोहतरमा को गाली दिलवा रहा है खुद। इस वजह से इस लानत तो अल्लाह को सलामत बेशुमार मेहरबानी शाह जी। लो जी तईद होगी सादात की, मालिक आपको सलामत रखे। बाबा जी अब तवज्जो सुनिएगा। मुझे लोग पूछते हैं मौलवी साहब सैयद की अलामत की होती है, तो जो मैंने ऑब्जर्व की है वो मैं आपको बता देता हूँ, वरना फिर सादात बेहतर जानते हैं उनकी अलामत क्या है। बाबा जी मैं हिसाब लाया, सैयद की सबसे बड़ी अलामत यह है वो जितना भी गरीब हो ना, वो खिलाने वाला है, खाने वाला नहीं। मालिक आपको सब, बेशक रेडी लगाता हो सैयद, बाबा जी मेहरबानी, रेडी लगाने वाला सैयद भी उसकी कोशिश होगी कि मैं किसी को पानी पियावा। सदके बाबा जी मेहरबानी। लो जी बाबा जी सादात की तईद हो गई जी, मालिक आपको सलामत रखे। बाबा जी मेहरबानी। बाबा जी इसी तरह ये सादात की जद है जनाब इब्राहिम, और इनके पास थी चाबी। तो वो जो चढ़ावे आते थे ना, नजर न्याद आती थी, वो फिर ये बेवाओं को, मसाकीन को, यतीमों को, मुसाफिर, इसलिए आप सुनते हैं ना कि बगैर मुसाफिर के खाना। भाई मुंतर जी शरीका बरात भी आपको पता होती है, और मैं मिंबर पे पढ़ना बिल्कुल थोड़ा ही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आराम से बात करूं तो मैं आपको लम्हा पढ़ना है, जितना मुझे बानियों ने कहा उतना ही पढ़ना शाह जी। लेकिन बाबा जी मेरा दिल करता है मैं बिस्मिल्लाह, दिल करता पैगाम दे के जाऊँ। बाबा जी शरीका बरादरी मैं कह रहा हूं, हालांकि ये लफ्ज दुरुस्त नहीं है। एक बार पूछो क्यों? क्योंकि जो दरूद वालों का दुश्मन होता है ना, उसकी बरादरी नहीं होती, और हरामदा होता है। नहीं समझ आई आपको? नहीं समझ आई, मेरा ख्याल नहीं आई। और यारा इब्राहिम पर दरूद है या नहीं? बाबा जी जो दरूद वालों का दुश्मन है ना, उसकी बरादरी होती ही नहीं है, यानी वो हराम ज्यादा होता है। मैं मजबूरन कह रहा हूं आपको कि शरीका बरादरी, क्योंकि मेरे पास लफ्ज नहीं है ऐसे। कोई बड़ा आलिम दिन हो उसके पास लफ्ज होंगे, मैं तो सदात का सबसे छोटा खादिम हूं, तो मेरे पास लफ्ज नहीं है मुतबादिल, इसलिए मैं कह रहा हूं शरीका बरादरी। वरना वहदहू ला शरीका लहू की कसम, जो भी दरूद वालों का दुश्मन हो
उसकी बरादरी नहीं होती। इसीलिए सूरह कौसर के पहले समर, सैयदों के पहले पाक दादा अली के बाद मौला हसन मुज्तबा किसी दरबार में थे और एक बंदे ने उठ के कहा तेरा बाप ऐसा ऐसा था। सैयद को जलाल आया और यूं कहा तेरा कसूर नहीं, तू जो मेरे बाप को भौंकता है तू वही है ना जिसकी पैदाइश पे 7 बंदों ने कहा था मेरा है। मालिक के जमाना आपके हाथों को सलामत रखे। जनाबे सईद सदके जामा बिस्मिल्लाह कर। बाबा जी सदके जामा। बाबा जी ये हसद है ना, मालिक आपको सलामत रखे। तो शाह जी वो हजरत इब्राहिम आए, वो जो शरीका बरादरी, मैं मजबूरन कह रहा हूँ, वो जो पार्टी थी शाह जी, बाबा जी उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करें कि ये जो चढ़ावे हैं ना पैसे, ये हमारे पास आए। अब चंद चेहरे ऐसे हैं जो बहुत हाई लेवल की मार्फत रखते हैं, उनके लिए तोहफा है। मेरे लिए कोई पैगाम है या मलिक साहब के लिए? अच्छा ठीक है जी। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि कुछ करें कि पैसे हमारे पास आए। उन्होंने कहा करना कि उनका ये जो काबा है ना, मेरे लिए देखा जी, इसी जैसा काबा परले महल्ले में बना लेते हैं। लो जी, मेरा ख्याल है 1:44 होगा ना जी शाह जी, 1:44 तो 2-3 मिनट तक छड़ दईए। राजी हो साईं? चलो मजमा थोड़े मुताबिक हो गया जी, ठीक है बाबा जी। बाबा जी उन्होंने कहा कि इसी तरह का नकली काबा परले महल्ले में बनाते हैं। जो अनपढ़ जाहिल आएंगे उन्हें क्या पता असल कौन है नकल कौन है। बन गया। जो एज में मुझसे बड़े हैं उनमें से एक बंदा चुप रहा, दुख होगा। उन्होंने काबे के सामने मलक मुंदर जी काबा बना लिया। लांतियों की पुरानी आदत है अल्लाह के बनाए हुए के सामने अपना जरूर बनाते हैं। सदके जामा शाह जी, मालिक आपको सलामत रखे। बाबा जी बिस्मिल्लाह करा। बाबा जी बिस्मिल्लाह। बाबा जी बन गया। हजरत इब्राहिम घर आए, जनाब इस्माइल की वालदा मोहतरम अल्लाह आपको सलामत के सामने थी। हाय बाबा जी कहा कि सदके जामा। बाबा जी कहा कि क्या बात है अल्लाह के खलील, क्या बात है? कहा परेशानी है, वो पैसे सारे उधर जा रहे हैं, लोगों को नहीं पता असल कौन नकल कौन है। तो कहा कि आप अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के खलील हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, दरूद वाले हैं, आप अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कीजिए ना, अल्लाह से बात कीजिए, हल लीजिए। उन्होंने मोबाइल निकाला, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, और नंबर डायल किया 51214। अल्लाह की कसम अल्लाह का यही नंबर है, कुरान की कसम इसके अलावा अल्लाह का कोई नंबर नहीं है। नबियों के पास भी यही नंबर था 512, ये अल्लाह का नंबर है। कॉल मिली जी, इब्राहिम का मालिक परेशानी बन गई है, परले महल्ले में नकली बन गया है। कहा कोई बात नहीं, तेरे सामने कौन है? का मालिक मेरी जौजा इस्माइल की माँ हाजरा। का इनसे कह दीजिए जहेज में ना एक संदूक मिला है और उसमें काला कपड़ा है, वो निकाल के ना तो काबा के ऊपर डाल दीजिए। बस ये अलामत हो जाएगा कि जिसके ऊपर कपड़ा है ना, यानी जो कपड़े के नीचे है वो असली है, जो बाहर है वो नकली है। जो कपड़े के नीचे है वो असली है, जो बाहर है वो नकली है। ये खलील था, तेरा मुस्तफ़ा हबीब है। हबीब के वक्त भी रौला पड़ गया था, अहले बैत असली कौन से हैं नकली कौन से हैं। कहा हबीब फिक्र न कर, ज़हरा से चादर ले, कायनात को समझ आ जाए जो चादर के अंदर है वो असली है। भाई मालिक के ज़माना आपके हाथों को सलामत रखे, जनाब सईदा आपको सलामत रखे। लो जी बाबा जी इंशाल्लाह जिंदगी रही, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी है। मैं जा रहा हूँ बाबा जी, इत्थे छड़ के शाह जी इत्थे छड़ के इक्को ही लफ्ज़ ते वड्डा नारा ते जाने जा ली। मलिक साहब राजी हो जी? इंशाल्लाह फिर जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब मुझे भी कहेंगे पढ़ 1.5 घंटा, वो यहाँ फिर मैं थोड़ा जहा वड्डा दाखिल होगा, जान दे बंदे तो मैं सो जाना। बाबा जी मेहरबानी, अल्लाह तो सलामत कि ए सलाम है जी। तो मैं जी नहीं हूँ नहीं मैं जा रहा हैं जी। मुझसे बेहतर जाकर मौजूद हैं। जब अपने से बंदा बेहतर मौजूद हो ना, फिर एवं चवला नहीं मारी दियाँ। ठीक है जी, ठीक है। फिर चवला मारने की बात है यानी फिर वक़्त ज़ाया नहीं करना। मुझसे बेहतर लोग बैठे हैं और फिर इनके बाद भी मौला आपको सलामत। बिस्मिल्लाह बाबा जी। जी शाह जी। अच्छा बाबा जी, ठीक है बाबा जी, ठीक ठीक है, ठीक 12 ठीक है जी, ठीक है। 14 के 5 8 5 13 के बने 4 बेबख्शा सारों चाहिए ने 5 अल्लाह ऐज करिए देख के ऐज के 5 एक भी शामिल करो।
बाबा जी कह रहे हैं कि जो नंबर आपने इस्तेमाल किया उसका अदद निकलता है 13, और इसका मुझे पहले पता है। अब मैं चाहता हूं कि मैं बाबा जी को बता दूं, लेकिन जैसे सैयद कह रहे हैं होगा वैसे ही, क्योंकि साढ़े बड़े ने ना बता इसलिए रहा हूं कि वो 13 इसलिए बनता है कि एक उनमें से मस्तूर है जिसे अल्लाह ने छुपा रखा है। ठीक है जी, लो जी, मौला पंजतर पाक आपको सलामत रखे। एक मरतबा आंखों में आंखें डालिए और मेरा जुमला सुनिए, जाने या अली। तैयार हो बाबा जी? मौला का आपको सलामत रखे। हूं एक वड्डा फिक्रा सुनो तो जाने या अली। हसद जी, ठीक है, हसद 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 या रसूल अल्लाह अल्लामा का मालम तकुन तालम। कुरान कहता है कायनात में जितना इल्म था हमने मोहम्मद के सीने में समेट दिया। इतने बड़े आलिम हैं आप, आपको पता है कि कयामत तक अली से हसद होगा। आपने क्या बंदोबस्त फरमाया? फरमाया सुनो, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह। हसन भी जन्नत का सरदार है, हुसैन भी जन्नत का सरदार है। व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, और इनका बाप, आज बात सुनिए, इनका बाप अली इन दोनों से अफजल है। या रसूल अल्लाह, बाप बेटों से अफजल है? कहना क्या चाह रहे हैं? तो मैं कायनात को बता रहा हूं, हसन भी बतूल का बेटा है, हुसैन भी बतूल का बेटा है। वह जब बतूल के बेटे अली के बराबर नहीं, काफिरा माओ के बेटे अली जैसे। ठीक है जनाब, नाराए है